Welcome everyone to the another lecture. Today we'll study about the bacterial staining. Bacterial staining is one of common methods in microbiology in the order to observe the bacteria with a more color. Sir Christian Grams is actually invented this way of coloring the bacteria in the order to observe them under the microscope. So why we need to color the bacteria? Because bacteria, they have the same refractive index as that of the water. Now refractive index means what? It is the light bending ability of any medium. So water has at least almost a zero refractive index, therefore they cannot give any color, right? And the bacteria, they have the similar refractive index as that of the water. That means the bacteria in unstained or uncolored condition, they cannot give any color, right? So because of this, when we observe such bacteria under the microscope, this seems to be opaque or invisible. That's why we cannot see the bacteria. It's only because of the refractive index of the unstained species of a bacteria is called zero. So therefore we cannot see. So staining करने की वजह से the bacteria and their cells and their internal structures, they can be observed under the microscope. Okay, so this is what we need to color the bacteria in the order to observe under the microscope. In unstained condition bacteria, we cannot see the bacteria by the naked eyes. Therefore we need to stain the bacteria, or we need to color the bacteria in the order to observe under the microscope, right? So we have to define the stains and the dyes. Okay, stains and the dyes, they are the similar coloring compounds, right? So but the stains are generally used for the scientific purpose, okay, while the dyes, they are used for the any general purpose, like coloring the cloths or the coloring the different types of object. That has become the general purpose, right? Stain is actually we use it for the biological purpose or the scientific purpose. Stain and dye both are coloring compound. They have the similar structures. Okay, stain generally they bind temporarily, okay, onto the cells, whereas the dyes, they bind permanently. Okay, so like when we have to do the color to the clothings, generally we dye use, right? And these are the stain which are used for the scientific purpose, right? So the stain and dyes are the same chemical organic compound which has a color. Stains are used for the scientific purpose or biological purpose and the dyes are used for the any general purpose, right? Now the auxochromes and the chromophore, these are the two things actually which are present into the stain or the dye, which actually make them colorful. So every dye or a stain molecule, they have these two functional groups, right? So we'll see the what is auxochrome. Auxochrome is actually a functional group which is attached to the chromophore. Okay, so this auxochrome helps the chromophore to change the wavelength and the intensity of the absorptions, right? And the chromophore are what? Chromophore is actually the group that absorb the light and reflect the lights, okay, of a specific color. In this structure here you can see this particular portion, it is actually auxochrome, and this whole portion is called the chromophore. Okay, so यानी कि chromophore के साथ attach रहेगा auxochrome. Auxochrome, it actually helps the chromophore, okay, क्या help करेगा? वो change करेगा wavelength and the intensity of the chromophore. Okay, और chromophore क्या करेगा? Chromophore is actually absorb the light, okay, that means the color, okay, they reflect. So generally we see anything as a color because, for example here, okay, so this green leaf, okay, we see as a green only. Why? Because when the light is falls onto the green leaves, light has the several number of colors, okay, only the green is actually absorbed by the leaf, okay, and then reflect. Rest of the colors, they are only absorbed but they are not reflected. Okay, so the green color is absorbed and reflected, therefore we see the leaf as a green. Rest of the color do not reflect it, right? So reflection and the absorption is a main criteria to see the things colorful. ठीक है. सो क्रोमोफोर क्या करता है, क्रोमोफोर एब्सॉर्ब भी करेगा
और उसको रिफ्लेक्ट भी करेगा, देयरफॉर वी सी द कलर। सो स्टेन में ये दो चीजें जरूरी है, ऑक्सोक्रोम्स एंड द क्रोमोफोर। ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर की वजह से ही कलर कंपाउंड बनता है, राइट। So we have to classify the stains. There are the three classes: acidic stain, basic stains, and the neutral stain. So what is acidic stain? Acidic stains are those chemical compounds which carry the negative charges. Okay. For example, we have the several examples here: nigrosin, eosin. These are all different types of staining molecule which are the acidic in nature, that carry the negative charge. Basic stains carry the positive charge. Okay, for example, like crystal violet, methylene blue. These are the different types. Okay, neutral stain carry both positive as well as the negative charges. Okay, so based on the charges, we can classify the stain as acidic, basic, and the neutral stains, right? And see how exactly the stain is actually binds to the cell. In case of this, we see the principle of staining. सबसे पहले बेसिक स्टेन के पास क्या है, दे हैव दी पॉजिटिव चार्जेस. ओके, वी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द चार्जेस. जिसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो बेसिक स्टेन बनेगा. बेसिक स्टेन हम तब यूज करेंगे जब हमको निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल को कलर करना है. ठीक है, अब सेल्स में कौन से एरिया निगेटिव चार्ज रहता है, सेल का पूरा सरफेस और न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लिक एसिड दैट इज एसिडिक रहता है, विच हैज द नेगेटिव चार्ज है उनके पास. ओके, सो हम यूज करेंगे सेल सरफेस या न्यूक्लियस को कलर करना है तो बेसिक स्टेन यूज करेंगे. सो दिस न्यूक्लियस इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज, सो वी विल यूज द बेसिक स्टेन विच हैज द पॉजिटिव चार्ज. एसिडिक स्टेन हैज द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, सो वी विल यूज इट टू स्टेन द पॉजिटिव चार्ज एरिया ऑफ द बैक्टीरिया. पॉजिटिव चार्ज जनरली कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है. ठीक है, दिस पोर्शन साइटोप्लाज्म. ठीक है, सो साइटोप्लाज्म को अगर बैक्टीरिया को स्टेन करना है तो हम यूज करेंगे एसिडिक स्टेन. न्यूट्रल स्टेन जिसके बाद दोनों हैगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो वी विल जनरली यूज टू स्टेन दी होल सरफेस. ओके, पूरी बैक्टीरियल सेल को जब स्टेन करना होगा तो हम न्यूट्रल स्टेन यूज करेंगे जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज रहेंगे. राइट, सो इन दिस वे the coloring compound attached to the bacterial cell based on their charges. Okay, so accordingly हमको यूज करना पड़ेगा बेसिक स्टेन या फिर एसिडिक स्टेन या फिर न्यूट्रल स्टेन. हमको किस एरिया को स्टेन करना है अकॉर्डिंगली वो स्टेन हम यूज करेंगे. So this is what exactly the heart of any staining process, that is called the gram staining. Okay, gram staining is actually invented by the Sir Hans Christian Grams, right? He was the scientist who actually invented this method. Okay? Therefore, the name is given gram staining. Gram staining mainly it actually gives the differentiation between the bacteria as a gram positive, which is seen as a color purple, and gram negative bacteria, which takes the color of pink. Okay, here you can see this is purple and this is the pink bacteria. Okay, pink bacteria is called gram negative bacteria, and purple color bacteria called gram positive bacteria. So gram staining say we can differentiate the bacteria as a gram positive or the gram negative. So there is a classification as gram positive, gram negative. So we'll see the method of this gram staining. For the first instance, what we have to do, we have to prepare a slide. Okay, it is also called as the smear. Smear is what? Is the thin film of a bacteria over the glass slide. So सबसे पहले क्या करेंगे हम, we'll take the culture of a bacteria from the test tube onto the needle. Okay, culture is what? The growth of a bacteria inside the tube is called the culture, right? So this needle से हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को निकालेंगे and then we'll put onto the glass slide. Okay, so this culture is mixed with the drop of a distilled water and then we spread over the slide in a slow circular motion. आपको धीरे धीरे घुमाना पड़ेगा in a slow circular motion. फिर आपको इस तरह का एक smear मिलेगा. ठीक है, that is the smear should be uniform smear. फिर smear बनने के बाद क्या करेंगे, हम उसको fix करेंगे, हल्का सा heat करेंगे, that is called heat fixing. We'll move the slide over the Bunsen burner so that the smear become completely dry and fixed, and finally you can see
the smear like this after drying. Okay, now this smear is ready for the staining purpose. Okay, so here with this we'll take the bacteria onto the needle, then we rotate into the circular fashion. Okay, and then finally we hit like this in the order to make it dry and fixed. So this is called the preparation of a smear. This is the first basic steps of a Gram staining. So here you can see this exactly. This is needle and this is the culture. We'll take the culture over the slide. We'll move in the circular fashion and then heat over the flame so that it become completely dry and fixed. Right. So this is what exactly a drop of a distilled water. Okay, we'll put over the glass slide. Okay, and we'll move in a circular fashion slowly. So this will create, now what we need to take the bacteria. Okay, just touch to the bacteria with the needle and then mix this bacteria with the drop of a distilled water on a glass slide. Okay, so we have to move slowly and then we will fix over the Bunsen burner in the order to make it dry and the fixed. So this is what making the smear, right? Now these are the 4 steps actually which are very important for the staining purpose. सबसे पहले क्या करेंगे, स्मीयर बनाने के बाद हमको डालना पड़ेगा पहला stain. Okay, first stain is called the crystal violet. Okay, since it is the first use, therefore it is called as the primary stain. It is also called primary stain because it can stain cell wall of any bacteria. Okay, not particularly but सभी बैक्टीरिया को वो कलर करता है, therefore it is called as the primary stain. Okay, so smear बनने के बाद हम क्या करेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट को डालेंगे स्लाइड पे या फिर स्मीयर पे. ओके, 1 मिनट रखेंगे. 1 मिनट होने के बाद हम क्या डालेंगे, ग्राम्स आयोडीन डालेंगे. ओके, ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन होता है वो, इट एक्ट एज अ मॉर्डन. ओके, सो आयोडीन हम इसलिए डालते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन द फिक्सिंग ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट टू दी सेल वॉल. यानी क्रिस्टल वॉयलेट को सेल वॉल के साथ परमानेंटली या फिर स्ट्रांगली बाइंड करने के लिए हम डालेंगे आयोडीन. आयोडीन को बोलेंगे हम ऑल्सो मॉर्डन. ठीक है, सो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, CVI कॉम्प्लेक्स. ठीक है, CVI मीन्स क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सो ये क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस हो जाएगा दूसरे स्टेप में. ठीक है, थर्ड है डीकलराइजेशन. दिस एक्चुअली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और द स्टेप्स. ये क्या करेंगे हम, जैसे आयोडीन डाल देंगे उसके बाद हम 95% अल्कोहल से स्लाइड को वॉश करेंगे. इसको बोलते हैं डीकलराइजेशन स्टेप्स. इसमें क्या करेगा, जो प्राइमरी क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन है उसको हम रिमूव करेंगे. ओके, एंड फाइनली हम डालेंगे सैफ्रानिन. सैफ्रानिन एक्चुअली काउंटर स्टेन इसको बोलते हैं. प्राइमरी स्टेन कौन सा है, क्रिस्टल वॉयलेट. काउंटर स्टेन कौन सा है, सैफ्रानिन. ये 2 स्टेन यूज कर रहे हैं हम सिर्फ यहाँ पे. ओके, सो सैफ्रानिन डालेंगे, फिर बाद में स्लाइड को वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे एंड फाइनली हम उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर. ठीक है, सो दिस आर द 4 बेसिक इंपॉर्टेंट स्टेप्स बाय विच वी कैन कलर द बैक्टीरिया इन द ऑर्डर टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली. फर्स्ट वी टेक द क्रिस्टल वॉयलेट. Okay, add over the slide. Crystal violet will color the bacteria as a purple like this. Okay, फिर उसके बाद क्या डालेंगे, we will add the iodine. Okay, this iodine will helps fixing up crystal violet over the bacteria. So ये क्या प्रोड्यूस करेगा, CVI complex प्रोड्यूस करेगा. Third, we will add the ethanol, 95% alcohol, decolorization. So this ethanol will remove the crystal violet. Okay, and then finally we add the saffronin. Okay, so saffronin takes the some bacteria will take the color of the saffronin. So यहाँ पे आपको 2 टाइप्स के कलर दिख रहे होंगे, ये एक, okay, और ये दूसरा. Okay, some bacteria appear purple, some bacteria appear pink or red, right? So this is exactly क्रिस्टल वॉयलेट है यहाँ पे, ग्राम्स आयोडीन, डीकलराइजर और सैफ्रानिन. 4 स्टेन लगेंगे हमको. सो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, वी विल ऐड द क्रिस्टल वॉयलेट ओवर द स्लाइड. देन वी वॉश द स्लाइड आफ्टर 1 मिनट विद द वाटर. ओके, एंड देन वी विल ऐड द ग्राम्स आयोडीन. ग्राम्स आयोडीन हेल्प्स द बाइंडिंग ऑफ द क्रिस्टल वॉयलेट टू द cells. Okay, then we will again wash with the water. Okay, and then we use the 95% ethanol. Okay,
that remove the crystal violet. Then again we wash with the water and then add finally the saffron in. Okay, we'll take the saffron for 1 minute and then we will wash again with the water. Okay, so these are the 9 steps by which we can perform this gram staining process. Exactly, right? So once we observe under the microscope, we will see the result like this. Some cells appear as a purple or a violet and some cell appear as a red or a pink. ठीक है, जो पर्पल अपेयर करेंगे उसको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो पिंक अपेयर करेगा उसको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. राइट. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि व्हाई सम बैक्टीरिया अपीयर पर्पल और व्हाई सम बैक्टीरिया अपीयर पिंक. ओके, बिकॉज द आंसर इज लाइज इन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर. ठीक है, उनके सेल वॉल में ही कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया पर्पल बनते हैं, कुछ बैक्टीरिया पिंक कलर ले लेते हैं. यही हमारा बेसिक हार्ट है ग्राम स्टेनिंग का, विच डिफरेंशिएट द बैक्टीरिया एज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. नाउ वी विल सी हाउ दिस सेल वॉल एक्चुअली हेल्प्स इन टेकिंग अप अ पर्टिकुलर कलर. ठीक है, व्हेन वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वॉल ऑफ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो थिक होता है. ठीक है, बिकॉज उसके पास सबसे ज्यादा लेयर होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन्स के. ना पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? ये एक पॉलीसैकेराइड है जो सेल वॉल पे रहता है. इट इज दिस. ओके, देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ अ पेप्टिडोग्लाइकन, जिसकी वजह से इसका सेल वॉल क्या होता है? इट बिकम वेरी थिक. ठीक है, सो पेप्टिडोग्लाइकन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल वेरी थिक. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल देखते हैं हम यहाँ पे देखो क्या है, ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल जो है वो थीन होता है. ठीक है, व्हाई? बिकॉज इट हैज द वेरी लेस पेप्टिडोग्लाइकन. यहाँ पे देखिए सिर्फ ये एक थीन लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन की, ओनली सिंगल लेयर. ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है? ये थीन है. ठीक है, और इसके पास एक्स्ट्रा क्या है? इनके पास है लिपिड मेम्ब्रेन. ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स, लिपोपॉलीसैकेराइड. लिपोपॉलीसैकेराइड ज्यादा होता है, पेप्टिडोग्लाइकन कम होता है ग्राम नेगेटिव के पास. ग्राम पॉजिटिव के पास क्या है? सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका सेल वॉल क्या बनता है? थिक बन जाता है. ग्राम नेगेटिव के पास सेल वॉल थीन है क्योंकि उनके पास छोटा सा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है. ठीक है, सो बेसिक डिफरेंस क्या है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में? एक का सेल वॉल जो थिक है, दूसरे का सेल वॉल थीन है. अब ये सेल वॉल की थिकनेस और थिननेस ही रिस्पॉन्सिबल करेगा कि कौन सा कलर लेना है. राइट. सो अब देखते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये हो गया ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल, ये हो गया ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल. ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल देखो कितना ज्यादा थिक है यहाँ पे, ग्राम नेगेटिव का थीन है इतना. ठीक है, सो जब हम स्टेप्स करेंगे ग्राम स्टेनिंग के, सबसे पहले क्या करेंगे? कौन सा स्टेन डालेंगे हम? क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में भी ग्राम नेगेटिव में भी. क्रिस्टल वॉयलेट डालने से वजह से ये दोनों सेल को कलर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टेन. उसके बाद हम क्या डालते हैं? आयोडीन. ओके, दोनों के पास सेम कलर है अभी भी. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डीकलराइजेशन, यानी 95% इथेनॉल वाला स्टेप. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डीकलराइजेशन यानी जो अल्कोहल रहेगा वो अल्कोहल क्या करेगा? जिसका सेल वॉल थिन लेयर है वो वहां से वो लेयर को अल्कोहल रिमूव कर देता है. यानी कि इसका जो कलर था क्रिस्टल वॉयलेट का, अब देखो यहाँ पे कलरलेस हो गया ये. इसका मतलब क्रिस्टल वॉयलेट जो है अल्कोहल ने निकाल दिया है यहाँ पे. बट ग्राम पॉजिटिव पे अभी भी ये पर्पल ही है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल क्या है? इट इज वेरी थिक, जिसकी वजह से अल्कोहल भी इसको रिमूव नहीं कर पाएगा. बट ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल थिन होने की वजह से इसने ये पर्टिकुलर लेयर को रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से इसके साथ लगा हुआ जो स्टेन था वो भी निकल गया और ये बन गया कलरलेस. ओके, सो अल्कोहल डिसाइड करेगा कि कलर निकालना है या नहीं निकालना. जिनका थिक है वो अल्कोहल उसको रिमूव नहीं कर पाएगा, बट जिनका थिन सेल वॉल है उसके साथ वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को निकाल देगा, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल वॉयलेट भी हट जाता है और यहाँ पे फिर वो सेल्स के पास कोई कलर नहीं रहता, दैट इज इट बिकम कलरलेस. फिर आखिरी में जब हम सैफ्रनेट डालते हैं स्टेप में, तो इसका तो कलर नहीं है कुछ भी यहाँ पे, इसलिए सैफ्रन जब डालेंगे तो सैफ्रन जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा. बट यहाँ पे ऑलरेडी कलर है, डीकलराइजेशन स्टेप के बाद भी क्रिस्टल वॉयलेट है, तो इसके पास ऑलरेडी एक कलर है, तो ये सैफ्रन का कलर यहाँ पे नहीं लेगा. ठीक है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी क्रिस्टल वॉयलेट था.
बट इसने ले लिया है सैफरन कलर क्योंकि इसके पास ऑलरेडी अभी यहाँ पे कोई कलर नहीं है, अल्कोहल ने उसको रिमूव कर दिया है, इसलिए ये सैफरानिन यहाँ पे हटा देता है। यानी एक सेल आपको दिखेंगी पर्पल और दूसरी सेल दिखेंगी रेड और पिंक। सो ये है एग्जैक्ट कि क्यों बैक्टीरिया कोई पर्पल लेगा या फिर पिंक कलर लेगा। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ अ पेप्टिडोग्लाइकन, जिसकी ज्यादा थिकनेस होगी उसकी वजह से अल्कोहल उसको निकाल नहीं पाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ग्राम नेगेटिव अपीयर रेड और पिंक बिकॉज अल्कोहल जब ट्रीटमेंट देंगे हम उसको तो अल्कोहल क्या करता है, पोरोसिटी जो है, पोर की साइज जो है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की उसको बढ़ा देता है। ठीक है। जिसकी वजह से ये जो सीवीआई कॉम्प्लेक्स बना था वो क्या होता है, वो पास हो जाता है उससे, यानी रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल वॉयलेट का स्टेन को नहीं लेता है वो। ठीक है। यह देखिए यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन ठीक है, यहाँ पे देखिए हल्की सी लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, इसलिए आपको पर्पल और पिंक कलर के दो बैक्टीरिया। सर जब आप रिजल्ट देखेंगे तो ये पर्पल स्पेरिकल शेप के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिखेंगे और ये पिंक कलर के देखेंगे आपको ग्राम नेगेटिव जो होते हैं रॉड शेप के। ठीक है। सो दिस इज व्हाट स्पेरिकल शेप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड दिस आर द रॉड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो आपको यहाँ पे ये समझना है सेल वॉल की थिकनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द कलर ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट और द सैफरानिन। ये बेसिक है ग्राम स्टेनिंग का। होप दिस अंडरस्टैंड टू यू। सो वंस वी फिक्स द स्मीयर, फर्स्ट सबसे पहले क्या डालेंगे हम, क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे। ठीक है। 1 मिनट तक रखेंगे उसको एंड देन क्रिस्टल वॉयलेट्स को हम वॉश कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर। राइट। सो उसके बाद हम डालेंगे ग्राम आयोडीन। ठीक है। ग्राम आयोडीन डालने के बाद क्या होगा, क्रिस्टल वॉयलेट और ग्राम आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको बोलते हैं हम सीवीआई कॉम्प्लेक्स। ओके। सो क्रिस्टल वॉयलेट जो है वो परमानेंटली अच्छे से बाइंड्स टू द सेल वॉल। फिर उसको वॉश कर देंगे वाटर से, सेल विल अपीयर पर्पल यहाँ पे। राइट। देन फाइनली हम क्या करेंगे, अब इस स्लाइड को हम वॉश करेंगे इथेनॉल से। ठीक है। इथेनॉल क्या करेगा, इट रिमूव द क्रिस्टल वॉयलेट फ्रॉम द सेल वॉल, बट कौन से सेल का, जिनकी सेल वॉल थीन है। ठीक है। जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन कम है। तो अल्कोहल डालने से क्या होगा, पोर साइज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्रिस्टल वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बाहर निकल जाता है ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया में, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वो वही के वही रहेगा क्योंकि सेल वॉल उसका ठीक है। सो तब तक डालती है जब तक वो कलरलेस ना हो जाए उसका ड्रॉप फाइनली। ओके। इसके बाद हम वॉश करेंगे वाटर से स्लाइड को एंड देन फाइनली वी विल ऐड द काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन कौन सा है यहाँ पे, काउंटर स्टेन है सैफरानिन। सो सैफरानिन को हम ऐड करेंगे फॉर 1 मिनट। ओके। एंड देन वी वॉश अगेन फाइनली विद द वाटर। ओके। सो आफ्टर दिस वी विल ड्राई द स्लाइड प्रॉपरली एंड देन फिक्स अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर आपको कुछ पर्पल दिखेंगे, कुछ पिंक दिखेंगे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। अब ये होता क्यों है, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर। ठीक है। दिस हार्ड लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जब ये क्रिस्टल वॉयलेट अंदर आएगा अलॉन्ग विद द आयोडीन। ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और वो जाके सेल में फिक्स हो जाएगा। ठीक है। और जब हम ये दिस इज दे स्ट्रांगली बाइंड टू द सेल वॉल, व्हेन वी ऐड द अल्कोहल, अल्कोहल क्या करेगा, ये सेल वॉल को स्विंग करेगा जिसकी वजह से वो नहीं निकलेगा, परमानेंटली फिक्स है। ग्राम नेगेटिव में जब क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन आएगा यहाँ पे बाइंड होगा, बट अल्कोहल एडिंग की वजह से क्या होगा, ये इतना बड़ा पोर्स बन जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ द पोर्स दे बिकम रिमूव्ड आउट, वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। सो इन दिस वे जनरली द मैकेनिज्म ऑफ ग्राम स्टेन एक्चुअली वर्क्स। सो फाइनली दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या समझा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया जो क्रिस्टल वॉयलेट पर्पल अपीयर करेगा, दूसरा बैक्टीरिया जो सैफरन का पिंक कलर लेगा। और ये दोनों कलर क्यों लेते हैं, इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैज अ थिक सेल वॉल, मोर पेप्टिडोग्लाइकन. Gram negative bacteria has a thin cell wall, less peptidoglycan, and because of this difference in the cell wall structure, they takes the different color. Right? Hope this is all understand to you. Okay? We will continue in the next class with another topic. Thank you for now.